Hello students, in our this video we will talk about the difference between plant cell and animal cells, right? तो firstly the prokaryotic and eukaryotic जो terms हैं are given by or suggested by Hans Rees in 1960. In our previous video we have discussed the difference between prokaryotic and eukaryotic cells. Now the differences arises between plant cell and animal cell. There is a lot of difference between both two cells. Now we will discuss this. So if we talk about the plant cell contains the cell wall, that is the outermost layer of plant cell, right? If we talk about animal cell, then there is no presence of cell wall because animal cell do not have any cell wall and they do not need this. If the next difference is the plastids are present. If we talk about plastids, then plastid may be like leucoplast, right? Leucoplast, or we can say that chloroplast for the color and for the storage there is a leucoplast. ठीक है, in plant cell there is a need of both subjects. And if we talk about animal cell, then there is absence of plastids. Next the difference is chlorophyll is present and mature structures, right? If we talk about animal cell, then there is absence of chlorophyll. In plant cell, chlorophyll is needed because they perform the process of photosynthesis. Photosynthesis process is only take place when chlorophyll is present. Oxygen is produced by this process, so chlorophyll is needed. And chlorophyll are the pigment which capture the light. After capturing light, the photosynthesis process starts. Now the next difference is the vacuole presence. In plant cell, central as well as large size of vacuole present, but in animal cell, small size of vacuoles present. In plant cell, vacuole perform the function of lysosome because plant cell having lysosome while the animal cell having minute or rarely lysosome. So lysosome's function is performed by vacuoles in plant cells in case of plant cell. Okay, this is the difference. And the next difference we talk about is the nucleus. In plant cell, nucleus lies to the periphery, means like here is the plant cell and here is a large vacuole. Vacuole shifted the nucleus to the periphery. Okay, the large size vacuole शिफ्ट कर देता है न्यूक्लियस को पेरिफ्री की तरफ. इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड centrioles are usually absent. In plant cell, centrioles are absent. Centrioles function is to form microfibers, right? And animal cell centrioles present जो कि आपके microfibers की formation करेंगे और वो आपके जो क्रोमोसोम जो कि सेल डिवीज़न के टाइम पे जो क्रोमोसोम होते हैं उनको सेपरेट आउट करवाने में हेल्प करते हैं. तो प्लांट सेल के अंदर सेंट्रियोल का फंक्शन कोई और स्ट्रक्चर ले लेगी और वो वहाँ पर परफॉर्म करेगी. नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लांट सेल डू नॉट बर्स्ट इफ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. मीन्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया आपका, लाइक हियर इज दिस सॉल्यूशन यू मेड दैट इज़ हाइपोटोनिक. मीन्स कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो कैसी है, लो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, और जो वाटर है या सोलवेंट वो कैसा है आपका, ज़्यादा है. हेयर आई सोल्व इट लाइक ए बीकर इज़ देयर. इन दिस द प्लांट सेल इज़ प्रेजेंट एंड प्लांट सेल rectangular shape, right? The plant cell present and this beaker contains a hypotonic solution. means यहाँ पर जो आपका सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वो कैसा है, लो है, बट सोलवेंट की कंसंट्रेशन कैसी है आपकी यहाँ पर, ज़्यादा है. अब सोलवेंट आउटसाइड में ज़्यादा है, सोलवेंट आउटसाइड में ज़्यादा है, सोल्यूट आउटसाइड में कम है, और सेल के इनसाइड में सोल्यूट क्या है आपका, ज़्यादा है, और सोलवेंट आपका यहाँ पर क्या है, कम है. तो वाटर की एंट्री कहाँ से होगी आपकी, आउटर से इनसाइड में होगी. तो इस वजह से जो सेल है आपकी क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, स्वेल करेगी. स्वेल होने के बाद क्या चांसेस हो सकते हैं, सेल के ब्रस्टिंग के चांसेस हो सकते हैं.
और वी कैन से दैट स्वेलिंग इज़ एंडोऑस्मोसिस, है ना, वाटर की एंट्री हो गई है तो यहाँ पर एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हो गया है। तो सेल ब्रस्ट कर सकती है, बट इन प्लांट सेल there is a presence of cell wall and this cell wall provides rigidity and that's why in hypotonic solution cell do not burst, but animal cell usually burst कर जाती है अगर उसे hypotonic solution में रखा जाता है तो। The next difference is presence of lysosome. So in plant cell lysosome are rarely present. अगर रेयरली ही प्रेजेंट है तो उनकी जगह फंक्शन परफॉर्म कौन करेगा, तो वैक्यूल्स जो है स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट रहेंगे और यही वैक्यूल्स आपके इस फंक्शन को परफॉर्म करेंगे लाइसोसोम की। लाइसोसोम इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग, जो क्या करता है कि सुसाइड कर देता है जिन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर जो वैक्यूल्स की बात आती है तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ वैक्यूल। First one is sap vacuole, second one is your gas vacuole, third one is your contractile vacuole and the fourth one is your food vacuole। तो यहाँ पर इन सब ये सारे वैक्यूल्स आपके प्रेजेंट रहेंगे जो सारा फंक्शन परफॉर्म कर लेंगे। तो यहाँ पर लाइसोसोम की ऐसे इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट डिफरेंस की बात करें तो यहाँ एडजेसेंट सेल जो है कनेक्टेड रहेंगी थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। तो प्लाज्मोडेस्मेटा आपका क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है जो क्या करती है, कनेक्शन प्रोवाइड करती है वन सेल टू अनदर सेल। तो यहाँ पर जो आपका कनेक्शन रहेगा उसे हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लांट सेल के अंदर आपके प्लाज्मोडेस्मेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो क्या कर रही है, कनेक्शन करवा रही है एक सेल का दूसरे से। एनिमल सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सेल जंक्शन देखने को मिलता है, लाइक आपके ओक्लिडिंग जंक्शंस हो गए, डेस्मोटिब्यूल्स हो गए, डिफरेंट आप यहाँ पर सेल जंक्शंस देखेंगे तो वो आपको एनिमल सेल में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात की जाए तो यहाँ क्या रहेगा, आपका साइटोकाइनेसिस का फॉर्मेशन होगी, साइटोकाइनेस प्रोसेस होगा और वो किसकी फॉर्मेशन करता है, सेल प्लेट की फॉर्मेशन करेगा। एंड सेल प्लेट फॉर्मेशन इज टेक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट, राइट। हियर इज अ प्रेजेंस ऑफ फ्रैगमोप्लास्ट एंड it start from center and move to periphery, that is centrifugal, right। सेंट्रीफ्यूगल यहाँ आपको देखने को मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहेगा जिसकी वजह से सेंटर से हम पेरिफ्री की मूवमेंट, पेरिफ्री की तरफ सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी। वहीं अगर आप एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लीवेज प्रोसेस होगा, या इसे हम क्या बोलते हैं, सेल फर्रो इसे हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सेल फर्रो फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कहाँ से स्टार्ट होती है, पेरिफ्री से स्टार्ट होती है और मूव किसकी तरफ करती है, सेंटर की तरफ करती है, मीन्स टुवार्ड्स द सेंटर। अगर टुवार्ड्स द सेंटर है तो इसे आप क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। फूड रिजर्व की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्टार्च एंड फैट आपको स्टर्ड फूड भी मिलेंगे प्लांट सेल के अंदर, लेकिन एनिमल सेल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जनरली आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन यहाँ पर स्टोर्ड फूड में मिलेगा। अब हम इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस की बात करते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल जो है इन दोनों की स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात आती है आउटर मोस्ट लेयर की। तो आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है, सेल वॉल मिलती है। अब सेल वॉल भी आपकी फर्दर डिफ्रेंशिएट होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। तो आपको यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर आपको यहाँ अपीयर होगी। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक हार्डेस्ट सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहेंगे, जो एक सेल को दूसरे से कनेक्ट करने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ इनर मोस्ट में जो लेयर आपको दिखाई दे रही है वो आपकी कौन सी रहेगी, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है। तो यहाँ आपकी इनर मोस्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जब हम सेल के इनसाइड पहुँचते हैं तो सेल के इनसाइड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपकी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। हेयर इज़ द लार्ज वैक्यूल प्रेजेंस एंड वैक्यूल शिफ्टेड द न्यूक्लियस टू द पेरिफ्री। तो यहाँ पर जो आपका न्यूक्लियस है वो पेरिफ्री की तरफ इधर भी शिफ्ट हो सकता है, इधर भी शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट रहेगा। न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर आपके ER प्रेजेंट है। तो ER यहाँ पर आपके दोनों टाइप के रहेंगे, SCR एज वेल एज RER। अगर
SCR की बात की जाए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जहाँ पर कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। और आउटर वाले की बात की जाए तो यहाँ आपका RER है, मतलब यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फ्री राइबोसोम्स भी आपके यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट रहेगा, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, एंड दिस इज़ योर गोल्जी बॉडीज़। ठीक है, तो यहाँ आपको गोल्जी एपरेटस भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये आपकी प्लांट सेल हो गई जिसको आप जनरली देख रहे हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस की बात की जाए तो यहाँ आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ आपको क्या अपीयर होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपीयर होगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपकी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनसाइड में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सेंटर में न्यूक्लियस आपका प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के साथ ER प्रेजेंट है, SCR एज वेल एज RER दोनों ही प्रेजेंट है। फिर यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, SCR हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गए आपके, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम है, साइटोप्लाज्म हो गया, फ्री राइबोसोम्स है, और ये सारा आपका साइटोसोल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा जो कि फ्लूइड है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके डिफरेंस हो जाएंगे प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।